Hey everyone, welcome to my channel. Today we are going to study this topic from your English grammar syllabus. The name of the topic is subject verb agreement. You will get few questions after the lecture, after the class. You will get few questions. Let's start the topic. So first we'll discuss subject verb agreement, but before starting this topic, I want to give you a little knowledge on this subject and verb word. Okay. Jennifer walked to store. In this sentence, you can see this Jennifer. Jennifer is the subject here and walked is the action word. So the action word is known as verb and the person or the thing for which we are talking about in the sentence is act as subject. Subject generally noun या pronoun को pronoun act करता है और verb generally action word होते हैं. ठीक है. सेंटेंस दूसरा सेंटेंस है आफ्टर लंच आई विल कॉल माई मदर. सो हेयर आई is the doer of the action and will call is the action word. Okay, so I is the subject and will call is the verb in this sentence. Second, you were a great singer. Here you is the subject because you is the doer of action and were is the helping verb or the action word you can say in this sentence. Mosquito bites itch. So here mosquito bites. Here in this sentence mosquito is the subject because it works, it is the doer of the action, he bites and it itches. So this itch is the verb in this sentence. Okay, so here few auxiliary verbs are given in this slide. Auxiliary verb means helping verb. Helping verb का मतलब होता है वो verbs या वो words जो आपके सेंटेंस में हेल्प करते हैं मेन वर्ब को. ओके, जैसे कि आई एम राइटिंग. इफ आई से आई एम राइटिंग, सो दिस एम इज हेल्पिंग दिस राइटिंग वर्ड. ये मेन वर्ब हो जाएगा और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा. दिस हेल्पिंग वर्ब इज नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एक्शन that action happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. It means कि ये तीनों ही tenses में पाया जाता है helping verb. तीनों tenses कौन से? Present, past and future. Okay, so here is the list. You can go through. What is subject verb agreement? Here is the main question. What is subject verb agreement? So subject verb agreement refers to the relationship between the subject and predicate. Now what is predicate and what is subject in a sentence? Subject, for subject you can consider the doer of action or the person for which we are talking about in the sentence. जिस person या thing के बारे में हम sentence में बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, या जो पर्सन एक्शन कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट. एंड द प्रेडिकेट इज द remaining part of the sentence. The subject must agree with the verb in number and tense. So this is subject verb agreement. One robot loves apple. So this is one robot. Here you can say robot loves apple. Here the doer of the action. Who is the doer of action or who loves the apple? The robot. So robot is the subject of the sentence and he loves apple. So love is verb, sorry. So one robot loves apple. This is the sentence. This is the whole sentence and this subject and this is the verb. These two part of the speech must agree. These two agree in number and tense. इन्हें किसमें agree करना है? इन्हें किसमें सहमत होना है? नंबर में और टेंस में. इट मीन्स कि अगर हम ये कहें कि इसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो सिंपली इट मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर. दिस मीन्स बोथ नीड टू बी सिंगुलर और बोथ नीड टू बी प्लूरल. इट मीन्स कि अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट सिंगुलर होने के साथ साथ वर्ब को भी सिंगुलर यूज करेंगे. ठीक है, वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा. बट इफ वी यूज प्लूरल सब्जेक्ट, देन
we use plural verb also. Alright, this is the rule. This is the basic rule of subject verb concord or subject verb agreement. Basic rule. Alright, so one more thing, one important note point. This is a note point for you students. See, if we add s or es to any noun, it becomes plural. Like if we add s to boys, to boy, then it becomes boys, it becomes plural. But when we add s or es to any verb, it becomes singular. मतलब कि अगर हमने play में s को ऐड किया तो ये plays बन जाएगा, ठीक है। और plays क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, ठीक है। मैं इसमें आपको कुछ और भी वर्ब्स बताती हूँ, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखो, अगर हमने लिखा गो, इफ वी ऐड ई एस, गो एक प्लूरल फॉर्म वर्ब है, हमें इसे सिंगुलर बनाना था, इसलिए हमने इसमें गोज कर दिया। ही गोज टू मार्केट, दैट्स वाई वी से ही गोज टू मार्केट। ओके, सेकेंड, do. Do is the plural form. When we add es, it becomes does. He doesn't like apples. Alright. Third, when we add s to any main verb like play, it becomes plays. We say you play football, but when it comes about a singular person, it becomes he plays football. I hope you understand. If you have any doubt, you can comment me in the comment section. I will clear that doubt. See, so when we add s or es to any noun, it becomes plural, like boys becomes boys in the plural form. But when we add s or es to any verb, it becomes singular, like play become plays, and it is in singular form. Alright? See, basketballs, यहाँ पे बास्केटबॉल्स लिखा है, तो होपफुली आप समझ रहे होगे, यहाँ पे एस है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमने रोल यूज किया है, हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आई डोंट, आई के साथ मैंने डू को यूज किया बिकॉज आई इज कंसीडर्ड एज प्लूरल फॉर्म। ओके, दीज क्लोथ्स आर, क्लोथ्स के साथ मैंने आर क्यों लगाया, क्योंकि क्लोथ्स प्लूरल है, इसलिए हमने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया। पीटर डजंट लाइक वेजिटेबल, अब यहाँ पे पीटर आ गया, पीटर एक सिंगुलर पर्सन, एक सिंगल पर्सन है, दैट्स वाई वी यूज डजंट। डज का यूज मैंने क्यों किया, मैंने डू के साथ es का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ सिंगुलर पर्सन था। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड सेंटेंसेस, सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट्स। सो कंपाउंड सब्जेक्ट्स here means two subjects. Compound subject means टू सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एक साथ यूज हो रहे हैं तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। टू सब्जेक्ट इन द सेम सेंटेंस, टू सब्जेक्ट इन अ सेम सेंटेंस यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब। तो जनरली क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाते हैं तो वो सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट कहलाने लगता है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, दैट्स व्हाई वी यूज प्लूरल वर्ब इन इट। अनलेस द कॉम्बिनेशन इज ट्रीटेड एज सिंगुलर, अनलेस अगर वो कॉम्बिनेशन, अगर दो सब्जेक्ट, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है और इनका एक कॉम्बिनेशन बना दिया गया है और वो कॉम्बिनेशन सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब विद इट, बट जनरली वी यूज प्लूरल फॉर्म विद कंपाउंड सब्जेक्ट इन पॉपुलर यूजेस। और द टू सब्जेक्ट रिफर्स टू द सेम थिंग और पर्सन, अगर दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि एक ही चीज या एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, सो इसमें भी हम सिंगुलर पर्सन कंसीडर करते हुए सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। Here are some examples, like sugar and flour are needed for the recipe. So we need to prepare a recipe, and for this we need two ingredients,
two separate ingredients for like sugar and flour. So we use sugar as and flour as separate subject in the sentence. So we use are here. हमने क्या यूज किया, हमने आर यूज किया फॉर टू सेपरेट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. पेपरोनी एंड चीज आर ग्रेट ऑन पिज्जा. सो पिज्जा पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स दिखेंगे, उनमें से ही दो सेपरेट इंग्रेडिएंट्स है पेपरोनी एंड चीज. सो वी यूज आर विद इट. कॉर्न बीफ एंड कैबेज इज ट्रेडिशनल मील इन आयरलैंड. अब यहाँ पे कॉर्न बीफ एंड कैबेज ये दोनों ही अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जैसे नहीं बताया जा रहा है, इसे बताया जा रहा है इट इज अ मील. इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर subject or singular thing in the sentence, so we use is with the subject. is हमने कहाँ यूज किया, हमने इस रेसिपी या इस मील के साथ हमने क्या यूज कर लिया, हमने यूज कर लिया is का. ठीक है, सिंगुलर वर्ब का. द क्रिएटर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग. अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इज का यूज हुआ है. क्यों हुआ है, क्योंकि द क्रिएटर एंड द प्रोड्यूसर बोथ रेफर्स द सेम पर्सन. यहाँ पे क्रिएटर ही प्रोड्यूसर है, वो एक ही पर्सन की बात की जा रही है, इस वजह से हमने यहाँ पे इज का यूज किया है. अब अगर मैंने यहाँ पे ऐसा सेंटेंस लिखा होता, अगर मैंने यहाँ लिखा होता द क्रिएटर एंड द प्रोड्यूसर इज और आर कमिंग. आप यहाँ सेंटेंस देख के समझ सकते हो कि मैंने दो सेपरेट आर्टिकल यूज किए हैं, और इन दोनों सेपरेट आर्टिकल्स की वजह से हमने क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब को यूज करना है. लास्ट सेंटेंस क्या था, द क्रिएटर एंड प्रोड्यूसर इज कमिंग. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि द क्रिएटर एंड द प्रोड्यूसर, यहाँ पे कोई सेपरेट आर्टिकल नहीं यूज हुआ था, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर, इसे एक ही पर्सन कंसीडर किया और इसके साथ इज का यूज किया. पर यहाँ देखो इस सेंटेंस में दो अलग अलग आर्टिकल लगे हुए हैं, द क्रिएटर एंड द प्रोड्यूसर. दैट्स वाई वी यूज आर विद दिस सेंटेंस. नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, or you can say rule number 3. When using or nor in a compound sentence subject containing a singular and plural subject, जब भी आपके पास कोई सेंटेंस है, जब भी आपके पास कोई सेंटेंस है और उसमें दो सब्जेक्ट यूज किए गए हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2. सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 एनी वन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. इस केस में क्या कर सकते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और दोनों में से कोई एक सिंगुलर है या कोई एक प्लूरल है, सो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, द वर्ब अग्रीज विद द क्लोजेस्ट, द वर्ब अग्रीज विद द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट. तो जिस सब्जेक्ट के पास हमें वर्ब का यूज करना है, हम उस सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे फॉर आवर वर्ब. जैसे कि मॉम, my mom or dad is coming to play. My mom or dad is coming. यहाँ पे कुछ भी सोचने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और लगा है, और का मतलब है दोनों में से कोई एक आएगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर पर्सन को यूज कर लेना है. बट अगर ऐसा केस हो कि कोई एक सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाए, तो हम जिस सब्जेक्ट के पास आपका वर्ब का यूज होगा उस सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे. ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, either my sisters or grandpa is going to the park.
either my sister or grandpa is going to the park. ठीक है, so you can see in this sentence the subject one, this subject one is in plural form sisters, and subject two grandpa is in singular form, but here we use singular verb because हमने verb कहाँ लगाना है, singular subject के पास लगाना था, subject टू के पास लगाना था, इसलिए हमने is का यूज किया। आप इस रूल को सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो कि subject वन और subject टू में से हमने verb को उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है जो कि सिंगुलर है, या फिर सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का यूज करना है। वी यूज आवर वर्ब कंसीडरिंग सब्जेक्ट टू। ठीक है, सब्जेक्ट टू को हम कंसीडर करेंगे फॉर आवर वर्ब। ऑलराइट, लेट्स सी द another example. Neither gray nor white is my favorite. Here again ग्रे है और वाइट है, दोनों ही सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया, और नॉर है, नीदर नॉर है, इट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन है दोनों में से कोई एक, नीदर ग्रे नॉर वाइट, कोई एक का हमने यूज करना है, इस वजह से हमने इज का यूज यहाँ पे किया। अब देखो सेम सेंटेंस यहाँ पे, ईदर ग्रैंडपा और माई सिस्टर्स। अब देखो सिस्टर्स सब्जेक्ट टू बन गए हैं तो इसलिए यहाँ पे आर का यूज हुआ। सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब यूज कर लोगे, सिंपल। नीदर शी नॉर आई एम गोइंग टू द कॉलेज। यहाँ पे शी है सब्जेक्ट वन एंड आई है सब्जेक्ट टू, दैट्स वाई वी यूज एम अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट टू। आई क्या है आपका सब्जेक्ट टू, इसलिए मैंने एम का यूज किया। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो कि मतलब आपको सिंगुलर कंसीडर करने हैं, जैसे कि ईच। ठीक है, ईच एक सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। ईच गेट्स अ ट्रॉफी फॉर प्लेइंग। somebody, again somebody is the singular pronoun, so we use will पे। will और shall में हमें कोई singular plural नहीं देखना है, यहाँ पे somebody is paying the bill, आप ऐसा कह सकते हो, somebody is paying the bill। anybody is more fun than you। ठीक है, anybody भी हमारा singular pronoun consider किया जाता है, that's why we use singular verb with anybody। समथिंग, समथिंग भी सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इस वजह से इज का यूज हुआ। समथिंग इज रॉन्ग हेयर। एवरीबडी इंजॉयज, एवरीबडी क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, दैट्स व्हाई वी यूज इंजॉयज। इंजॉयज एक सिंगुलर प्रोनाउन आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, नथिंग हैज बीन, नथिंग इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, सो वी यूज हैज विद इट। नाउ कमिंग टू द प्लूरल प्रोनाउंस, हमें प्लूरल प्रोनाउन यूज करना है, बोथ के साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है, मैनी के साथ हमेशा हमें क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब। जैसे कि मैनी गर्ल्स आर गोइंग टू कॉलेज nowadays। ऑलराइट, सॉरी फॉर दिस चेंज। ओके, मैनी गर्ल्स आर गोइंग, यहाँ पे देखो मैनी है और उसके साथ प्लूरल आपका वर्ब, सॉरी नाउन है, एंड इसके बाद आपके पास प्लूरल वर्ब है। few is also considered as plural pronoun, so we use few know। यहाँ पे knows नहीं लगाया गया, no, few know what it really takes to get ahead। some is also considered as प्लूरल प्रोनाउन, बट यहाँ पे आप सेंटेंस देखो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का यूज हुआ है। सम शुगर इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्ट। शुगर इज अनकाउंटेबल, सो सिंगुलर वर्ब इज यूज हियर। यहाँ पे शुगर के अकॉर्डिंग हमने इज का यूज किया है, क्योंकि शुगर को ऐसा नहीं कि आप काउंट कर सकते हो। शुगर क्या है, क्वांटिटी में मेजर होगा, यू कैन नॉट काउंट द शुगर। सो इफ आई से सम गर्ल्स आर प्लेइंग, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम के साथ मैंने आर का यूज हुआ। ठीक है,
सम के साथ आपका प्लूरल नाउन लगा और नाउन के बाद प्लूरल वर्ब। मोस्ट ऑफ द कुकीज वर ईटन, यहाँ पे देखो मोस्ट का यूज हुआ है और मोस्ट के साथ वर आपका प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने यूज किया, ठीक है। सी नेक्स्ट रूल नंबर 4, it is about collective nouns. Collective noun can be singular or plural depending on meaning. जो मीनिंग कन्वे कर रहा है सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग हम कलेक्टिव नाउन को यूज करेंगे फॉर द वर्ब। जैसे कि यहाँ पे द कमिटी मीट्स हेयर एवरी थर्सडे, तो कमिटी एक साथ मिल रही है यहाँ पे, तो इट वर्क्स एज अ यूनिट, इट वर्क्स एज अ यूनिट, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। मतलब कि कलेक्टिव नाउन वो होता है जिसमें एक टीम होती है, तो अगर टीम के सारे मेंबर्स एक ही काम कर रहे हैं तो हम उसे सिंगल यूनिट कंसीडर करते हुए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। क्राउड, क्राउड इज गेटिंग एंग्री, तो सारी क्राउड ही एंग्री हो रही है इसलिए ये एक यूनिट जैसे वर्क करे, दैट्स व्हाई वी यूज इज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। द ज्यूरी हैज फाइनली रीच्ड अ डिसीजन, तो ज्यूरी एक साथ डिसीजन, सारे जो ज्यूरी मेंबर्स हैं उन लोगों ने एक साथ एज अ टीम उन्होंने क्या किया, एक डिसीजन लिया, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज हुआ है। द मेजोरिटी रूल्स मोस्ट द टाइम, यहाँ पे मेजोरिटी इट वर्क्स एज अ यूनिट, इट इज अ कलेक्टिव नाउन, so we use rules as singular verb. The staff have gone their separate ways for the holiday. अब यहाँ देखो आपको डिफरेंट थोड़ा सा एग्जाम्पल मिला, staff have gone, अब देखो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब यूज हुआ है बिकॉज दे वर्क एज सेपरेट यूनिट, दे गॉन सेपरेट वेज, उन लोगों ने अलग अलग अपने हॉलीडे के लिए प्लान किया, सो दे गॉन देयर सेपरेट। यहाँ पे एक और हिंट है आपके पास, यहाँ पे प्लूरल आपको प्रोनाउन भी देखने को मिलता है, सो यहाँ पे सारी कुछ प्लूरल है, सारा सब कुछ पार्ट ऑफ स्पीच प्लूरल यूज हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब को भी यूज करोगे, ठीक है। ओके, व्हेन इट कम्स अबाउट मनी we have this rule. I was on rule number 4, it is rule number 5. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड मनी, मनी को लेकर अगर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सेंटेंस आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे। सो money is tricky when it comes to subject verb agreement because there are specific rules for referring to an amount or money versus dollar or cent themselves, ठीक है। जब आप डॉलर सेंट्स इनको रिप्रेजेंट करते हो तो उस वो तरीका अलग होता है, वो डिफरेंट रूल्स होते हैं, बट फॉर एन अमाउंट अगर आपको कोई अमाउंट रेफर करना है तो उसके लिए क्या रूल होगा, एन अमाउंट ऑफ मनी टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, देयर इज अ फिक्स रूल, it is a fixed rule that it takes any amount takes singular verb with it, any amount will take singular verb with it, like 5000 rupees, यहाँ पे rupees है but it takes singular was deposit because it is an amount, due to amount it takes singular verb with it। Okay students, so this is the last slide of this topic. Here are few questions regarding this chapter or regarding this topic. We will solve these questions in the next video. Thanks for watching. Thank you everyone.